photographers again do not come in the view of the cameras. Sir, can we start? Namaskar. A very good afternoon, all of you. I would like to formally welcome the press for this press conference. The Honorable Commission has completed their two-day review of poll preparedness in West Bengal for General Elections 2024. Please, I would request not to come in the front view. I thank the Honorable Commission for taking time out from their busy schedule to brief the media today. This presser is being telecast live on ECI's social media platforms also. We have with us here the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar sir. The Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal sir couldn't join the PC because of some health. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters in Delhi. We also have the CEO of West Bengal, Dr. Aftab sir. I am Shri Anuj Chandak, Joint Director Media for the Honorable Commission. The format is as per the following. There will be opening remarks by CEC along with a presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When anyone of the media want to ask a question, kindly raise your hand. Wait for your chance to be called out to put your question. Also introduce your name and organization. The micer will come to you. Please keep your mobile phones on silent mode. Sir, I request you to kindly deliver your remarks, sir. Chief Electoral Officer of West Bengal, Shri Ariz Aftab, my senior colleagues from the Commission, and friends in very large number from press. A very good morning to you all. Namaskar. First of all, I extend a very warm greetings to each one of you. And we gather here today to discuss the review, to discuss what we did in last 2 days, and tell you about the poll preparedness in West Bengal and in the country in general. West Bengal is the state famous for its celebration and festivities. As you know, there is a popular Bengali saying, Bara maso, tera parvo. So the election is the 14th parv. जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है वो भी एक पर्व है और वो आपके सामने है. प्लीज ज्वाइन इन दिस पर्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिक्वेस्ट थ्रू यू all the voters of West Bengal to join in this coming festival of democracy in an extremely friendly environment and in large numbers. The Commission has its priority, very, very clear priority. Free elections, transparently done, violence free, inducement free. This is what is the focus. How do we do that? And what we discussed in last 2 days, that I will brief you all. There is no place for fear, intimidation or violence in elections. We are determined to make the experience of voting for all the citizens, all the voters, very, very festive and devoid of any kind of a fear or inducement. How would we do that? What political parties mentioned to us, I will all brief you about this. तो साथियों, 2 दिन में हमने सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत की, सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज से बात की और डीएम्स, एसपीज, आईजीज, डीआईजी, चीफ सेक्रेटरी, डीजी सबसे बातचीत की, सबसे रिव्यू किया. The political parties who came to meet us were national parties like AAP, BSP, BJP, CPIM, Indian National Congress, NPP. और स्टेट पार्टीज में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. तो इन सब पार्टीज ने क्या कहा, व्हाट डिड दे आस्क अस, और उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से क्या उनके सुझाव हैं, ये पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम उस पर क्या कार्रवाई करेंगे ये भी आपके माध्यम से बताऊंगा. सो फर्स्ट, पार्टीज सेड दैट देयर मस्ट बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड and free, fair and violence-free elections. All the parties mentioned about this.
The points they raised was that bureaucracy is not perceived to be neutral. It is compromised and biased. This is what majority of the political parties mentioned. They said lower bureaucracy in particular is not aligned to the free elections and providing level playing field. They say the partial conduct of some of the officers in the recently held elections of other than legislative assembly and parliament must be looked at. There were partisan role of some of the officers and there were strictures against them. ये भी कहा कि जो ट्रांसफर्स पॉलिसी है कमीशन की वो सही से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो. One of the party even raised the issue that false cases are filed and even at times nobody is spared. So generally they said थोड़ा भय का वातावरण है इसलिए इसको ठीक करने की कमीशन कोशिश करे. They said the violence pre-poll, during the poll and after the poll must be curbed. The international borders should be guarded well so that there is no possibility of any kind of nuisance from that side. उनका ये भी कहना था कि वोटर्स का इंटिमिडेशन डिफरेंट फॉर्म में होता है, खासतौर से 7-8 दिन पहले इलेक्शन के उसको रोका जाए. बहुत से इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऐसे हैं जो वोटिंग को रोकने की और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. कहीं कहीं घटनाएं घटती हैं बॉम्ब थ्रो करने की, मोलेस्टेशन की या इंटिमिडेशन की, उनको रोका जाए. All parties except one asked for adequate deployment of CAPF on all the places for controlling law and order. जो चुनाव का प्रोसेस होगा उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी कि सीसीटीवी कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर लगाए जाएं. रैलीज की जो परमिशन है या जो भी सुविधाएं पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती हैं दे मस्ट बी गिवन ऑनलाइन सो दैट जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टीसन बिहेवियर ना कर सकें. तो मैं इन सब जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनका जवाब भी मैं आपको अपने बात के एड्रेस में दूंगा. ऑब्जर्वर्स को अधिक से अधिक लगाया जाए और उनके नंबर, फ़ोन नंबर्स पब्लिक को और पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाएं ताकि उनसे जब जरूरत हो संपर्क किया जा सके. कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो स्टेट में काम करता है, जो सिविक पुलिस है, जो ग्रीन पुलिस है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसको चुनाव में ना लगाया जाए. चुनाव में होने वाले इम्पर्सोनेशन को रोका जाए. किसी भी एजेंट को बूथ से ना हटाया जाए, ऐसे इंश्योर किया जाए. कुछ पार्टीज का कहना था कि इलेक्शन को एक फेज में किया जाए. ये भी कहना था कि आधार कार्ड अगर कैंसिल हो जाते हैं तो वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. और ये भी उनका कहना था कि ईवीएम की मशीन्स का प्रोटेक्शन अच्छे से किया जाए, उनको लाने ले जाने में और उनको रखने की जगह का सिक्योरिटी सफिशिएंट तरीके से किया जाए. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई गिव यू द डिटेल्स ऑफ व्हाट ईच पॉइंट वाइज, we have given very, very strong instructions in no uncertain terms to the entire bureaucracy कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनका काम है. किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है और मनी पावर की कोई जगह नहीं है. कमीशन इज एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड टू एंश्योर दैट voters enjoy the voting. It's a festival. It's not an environment where you are fearful of exercising your right. So this we are determined to establish everywhere. Partisan attitude of the bureaucracy, senior, middle and lower, is a no-go area, will not be tolerated. हमने उनको बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अपने नीचे जितनी भी हायरार्कीज हैं, चाहे वो एसएचओज हों, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे वो रेवेन्यू की हों, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज की जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोल करें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में इंश्योर करें. अगर वो करेंगे ठीक है, वो नहीं करेंगे तो हम उनसे करवाएंगे और उनको जिम्मेदार ठहराएंगे. So friends, before I answer everything, all these points, let me give you an overview of the election process and election numbers in Bengal. There are 42 parliamentary constituencies, of which 30 are general, 10 SC and 2 ST.
If you look at the electors in Bengal, there are total 7.58 crore voters. All these slides would be sent to you immediately after this so that you can use them. Male being 3.85 and female 3.73 crore. We have 4.92 PWD electors. 85 plus electors are 4.86, and you would be happy. There are 5,400 electors who are of the age 100 and plus. That also says about the good in the society. First time voters are now 15.25 lakh. We have done a lot of work to enroll the young voters and the women. Electoral gender ratio in the state has improved to 968. And there are 90 assembly constituencies, 90, where the number of women is more than 1,000. And in 18 to 19 years also their number has increased. So this is 6.57 lakhs. तो जो अभी सर्वे हुआ था, उसकी वजह से यंग बच्चों पर और उसमें से गर्ल्स पर बहुत ही फोकस था. If I tell you about the youth, 294 dedicated election-related AEROs were appointed so that they can focus on youth. And there are even advanced applications of the youth which we have received. अगर मैं आपको particularly vulnerable tribal groups के बारे में बताऊं, तो वो 3 PVTGs हैं बंगाल में और उनका 18 प्लस की जितनी पॉपुलेशन है उनका एनरोलमेंट किया गया है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग, पूरे इलेक्ट्रल रोल में जिसको होना चाहिए वो हो, यूथ, विमेन, PWDs, 80 प्लस, 85 प्लस, 100 प्लस, ट्रांसजेंडर्स, PVTGs. It is a mosaic which is of which shows inclusivity, which shows purity, and which shows the health of the electoral roll. And we are happy to go to the elections with a very, very robust, happy electoral roll. Now, if I give you the details about the polling stations, the total number is 80,453. Average voters are 943 in each of the polling station. Rural polling stations are much more than the urban, and we will do at least 50% webcasting of all the polling stations. At least 50%. We can even do more. कुछ polling stations हैं जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा, कर्मियों के द्वारा स्थापित होंगे. हम कोशिश करेंगे कि उसमें पुलिस फोर्स भी महिलाओं की हो. ये उनके एक एम्पावरमेंट को प्रदर्शित करने का तरीका. इसी तरीके से कुछ पोलिंग स्टेशंस होंगे जो सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से एस्टेब्लिश होंगे, ताकि हम समाज में एक ये भी उदाहरण प्रस्तुत करें कि दे आर नो लेस देन एनीबडी एल्स एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्शंस एंड डू एनीथिंग इन लाइफ एज एनीवन ऑफ अस कैन डू. आपका वोटर्स का एक्सपीरियंस हमारे पोलिंग स्टेशंस में अच्छा हो, इसके लिए बहुत तैयारी की जा रही है. एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए बूथ्स विल बी हैविंग, all booths will be on ground floor, will have toilet, will have ramp, wheelchairs, electricity, toilets, drinking water, and also shade, because it would be a season of, there would be a lot of heat during that season. So, persons with disability के लिए wheelchair भी रहेगी, वहाँ एक volunteer भी रहेगा, और एक फॉर्म 12D भर के अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें घर से वोट देना है और उनकी 40% से अधिक अगर डिसेबिलिटी है तो उनको हम घर से भी वोट देने की सुविधा देंगे. और उसी प्रकार से जो हमारे एल्डर्स हैं उनमें अगर 85 प्लस के जितने भी एल्डर्स हैं उनको भी हम घर से वोट देने की सुविधा देंगे. हालांकि एक्सपीरियंस ये है कि लोग फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में बूथ पर ही आना चाहते हैं. फ्रेंड्स, इफ आई गो टू द नेक्स्ट, हम इन चुनावों में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं. एक आपको सिर्फ 2-3 के बारे में मैं जरूर बता दूं ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये पता लग सके. एक वोटर हेल्पलाइन है, इसमें आप सब चीज देख सकते हैं. किसी वोटर को अपना पोलिंग स्टेशन देखना है, अगर उसका मोबाइल नंबर अंदर में है सीडेड, तो वो एपिक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, BLO से भी कनेक्ट हो सकते हैं और मतदाता सूची में अपना नाम भी जांच कर सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सी विजिल, सिटीजन्स वी विजिलेंट. इसमें आपका सहयोग खास तौर से हमें चाहिए.
अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं कोई हिंसा की तैयारी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटने की तैयारी हो रही है, लीकर की तैयारी है, ड्रग्स की तैयारी है, इरेगुलर टाइम में कैंपेनिंग हो रही है, तो इस एप्लीकेशन से या तो लिखकर या तो फोटो खींचकर हमें भेज दें। जहां से भी भेजा गया वहां का लोकेशन हम खुद से ले लेंगे, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, और विद इन 100 मिनट्स हमारी टीम जांच की वहां पहुंचेगी, जांच करेगी, एक्शन लेगी और ये बताएगी भी कि क्या बात सही थी, पार्शियली सही थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया। सो प्लीज पॉपुलराइज दिस। आई वुड रिक्वेस्ट दी जितने भी जागरूक सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं बंगाल के, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो प्लीज हेल्प अस एंड वी गारंटी दैट आवर टीम विल रीच इन राइट टाइम एंड लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग। जो कैंडिडेट्स ने हमसे कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि उनको सुविधाओं की बराबर में मिलनी चाहिए, जो मांग थी उनकी, तो उनकी ये मांग हम सुविधा पोर्टल से पूरी करेंगे। जो भी पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर एक ग्राउंड को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समय में मांगा कि हमें इस तिथि को, इस डेट को, इस समय पर ये चाहिए, उसको वही समय पर मिलेगा, जो सेकंड पर्सन विल नॉट गेट इट। सो दिस विल एस्टेब्लिश द लेवल प्लेइंग फील्ड in allotment of all the entitlements to the political parties and candidates. Friends, this is another very important right which the citizens have to know your candidate. किसी कैंडिडेट का अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस एप्लीकेशन में उनकी फोटो, उनको क्या क्या उनके ऊपर में क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, इस सबका पता लगेगा। Citizens can go to this app and see कि उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देख सकते हैं, उनका एफिडेविट्स भी इसी जगह में देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि उनके कैंडिडेट्स के ऊपर में कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। कैंडिडेट को 3 बार न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट भी देना है कि मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पर दैट वो ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं चुन पाए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। वाई इट वॉज ए नेसेसिटी दैट दे choose somebody who has a criminal background. So friends, please convey this, expand this, amplify this particular app so that people can see, they have a right to know about their candidate, they can know about their candidate. हमने पूरे चुनाव में धन का दुरुपयोग रोकने के लिए अगेन एक पोर्टल बनाया है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, सब इस पोर्टल पे हैं। सबको क्या क्या डायरेक्शंस दी गई हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट में जो इंटरनेशनल और बॉर्डर्स हैं उन पर बहुत ही सख्त विजिल रखने की स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। देयर वुड बी पुलिस चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट, एक्साइज चेक पोस्ट, कस्टम चेक पोस्ट एंड इन टोटल देयर वुड बी अराउंड 151 चेक पोस्ट। और इसके अतिरिक्त एसएसबी, बीएसएफ और अदर एजेंसीज, कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स ये भी बहुत सख्त तरीके से इन दिनों में बॉर्डर पे चेकबाल रखेंगे, ऑल द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अगर क्या उनको डायरेक्शन दी गई है मैं आपको बताऊं तो आज की मीटिंग में सुबह में सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को बुलाया गया था, स्टेट पुलिस, एक्साइज, जीएसटी, नारकोटिक्स, एसएसबी, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड्स, डीआरआई, एवरीवन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उनसे कहा गया है कि मनी पावर पर, बॉर्डर से किसी भी तरीके की ड्रग आने पर, लोगों के इधर से उधर आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और लीकर, ड्रग्स, फ्रीबीज को पूरी तरीके से रोकेंगे। चुनाव बिल्कुल इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। इसमें जो भी चीज़ लाने की लोग कोशिश करें, खासतौर से ड्रग, किसी भी नॉर्थ ईस्ट से आए, बॉर्डर से आए, मेनलैंड से आए, उसको 100% रोकने का प्रयास करेंगे। एंड दिस एक्शन यू विल सी इन टाइम्स टू कम। कार्रवाई भी छोटे लोगों के साथ साथ बड़े लोगों पर करें, जो किंग पिन्स हैं उन पर करें। ऐसा नहीं कि जो ड्रग और लिकर लेके लोग पेडलर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, उन पर ना करें, बल्कि उन पर तो करें ही, लेकिन जो किंग पिन्स हैं उसके पीछे में हैं उन पर करें। एसएलबीसी को कहा गया है, बैंकर्स को, कि कैश का मूवमेंट उनकी वैन्स में 5 बजे के बाद नहीं होगा। ऐसा नहीं
कि एम्बुलेंसेज में, वैन्स में, इन सब में कोई भी कैश लेके इधर से उधर जाने की कोशिश करे। राज्य में जितने भी हेलीपैड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर स्ट्रिक्ट विजिल रहेगी, चेकिंग होगी, उन पर फोर्स रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी जब हेलीकॉप्टर्स को या प्लेन्स को अपने अपने एरिया में उतरने की परमिशन देंगे तो वो इनकम टैक्स को बताएंगे, और BCS जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सूचना देता है वो भी खास तौर से देंगे, ताकि उस पर भी विजिल रखा जा सके। वेयर हाउसेज जितने भी हैं उस पर GST देखभाल रखेगी। So all the enforcement agencies would work in close coordination and not in silos, so as to ensure that elections are not only violence free but also inducement free. How it will be violence free, I'll come to the next, what the district magistrates and SSPs have been told. Absolutely, this is what political parties asked, and strong instructions have been given, very clear to the district magistrate, SPs, IGs, all the senior officers, that they have to be impartial, transparent and accessible to all political parties equally to provide level playing field. उनको ये भी कहा गया है कि अभी से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रेगुलर मीटिंग करें, और वो रेगुलर मीटिंग करते करते उनको बुलाएं और उनकी जो भी शिकायतें उसको सुने और उसका लिखित जवाब वापस उनको दें। वी वर्क ऑन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। वी डिस्क्लोज whatever we do, we disclose. We involve whatever any stakeholder wants to tell us, we listen to political parties, candidate, involve and give them a reply. Media is present in all our activities every time. Movement हो, ER roll हो, machines का movement हो, everywhere media is involved. So it's transparency, transparency, transparency. Police officials and these district level officials have been told कि नीचे के स्तर पर पुलिस स्टेशंस, रेवेन्यू स्टाफ, एक्साइज स्टाफ, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको जो काम उनको करना है वो काम करें और उसके अतिरिक्त कुछ इधर उधर की चीजें ना करें। ये स्पष्ट बताया गया है। अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दे आर लायबल टू बी टेकन एक्शन अगेंस्ट। There is absolutely zero tolerance to any violence in democracy, and this is what has been very, very clearly, repeatedly, forcefully explained, and they have all committed to us that they will do it. We will see that it gets implemented, and if any mid-course correction has to be done, we will not hesitate in doing. Sufficient CAPF will come. It will be deployed in a impartial manner. How will it be deployed? The SPNO from the State Police Nodal Officer, CO, Mr. Arij, and the Central Observer who will come. 3 of them will decide the CAPF where it should go, what is the requirement. तो तीनों CO साहब रहेंगे, स्टेट के पुलिस नोडल अफसर रहेंगे, सेंट्रल के ऑब्जर्वर, हमारे ऑब्जर्वर रहेंगे, तीनों मिलके करेंगे ताकि कहीं कोई पार्शियलिटी का प्रश्न आए। और जब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में भी DM, SP और सेंट्रल ऑब्जर्वर मिलके करेंगे ताकि अगेन उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। CAPF का प्लान भी हम सबसे शेयर करेंगे, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ताकि उनके ऊपर ऐसा कोई ना कहे कि आपने इधर भेजा उधर नहीं भेजा। सबको वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स कम से कम 5-6 दिन पहले सबको मिलेंगी। अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है तो उसको और 12-13 हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उन सबकी मदद से भी वो वोट डाल सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू कीप द ID कार्ड। ये एपिक के साथ भी है, अगर बाई चांस नहीं है और वोटर स्लिप आई है तब भी वो वोट डाल सकते हैं। इम्पर्सोनेशन या जिसको यहाँ छापा वोटर भी बोलते हैं, वो सबको रोकने के लिए बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर कोई इम्पर्सोनेशन की कोशिश करे, डुप्लीकेट वोट डालने की कोशिश करे, छापा वोटिंग की कोशिश करे, तो इमीडिएटली सेक्शंस रिलेवेंट हैं IPC की, उनमें क्रिमिनल केस करें, उनको रोकें। जितनी भी पार्टीज आपसे लेके आगे तक कंप्लेंट्स करती हैं डिस्ट्रिक्ट में या CO साहब के यहाँ, उनका निराकरण करके उनको लिखित जवाब दिया जाए कि आपने ये कहा था, ये सच पाया गया, इस पर ये एक्शन हुआ, ये सच नहीं पाया गया, आपने गलत शिकायत की थी। ऑल स्टोरेज ऑफ द EVMs विल बी बाई ए 3-tier सिक्योरिटी रिंग। Inner ring of the CAPF,
outer ring of the state armed police and the further outer ring of the state police. बहुत सारी फेक न्यूज इस समय में, चुनाव के समय में चलती है. फेक न्यूज को रोकने के लिए अंडर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट, आईपीसी, the mechanisms have been put in place. There is a control room in every district which will be set up, an integrated control room, which will keep seeing the media, what is happening, which will keep seeing the CCTV footage, which will look at complaints coming from 1950, which will look at various social media handles to know what is happening, what is the negative narrative coming, and what is the information coming. We will tackle it very, very strongly and very, very methodically. So friends, हम लोग पूरी तरीके से चुनाव को निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध है. आपके माध्यम से मैं सभी बंगाल के सभी वोटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, उनसे गुहार लगाना चाहता हूं कि वो वोटिंग करने जरूर आए और प्रलोभन मुक्त माहौल में आए. अगर कहीं ऐसी जरूरत होगी जिससे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड या प्रलोभन या वायलेंस होगी, हम कॉन्स्टेंटली नजर रखेंगे, इंटरवीन करेंगे. मीडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज वी हैव इन द इलेक्शन कमीशन, बिकॉज आपके थ्रू हम बात सुनते हैं, हमें पता लगती है और आप ही के थ्रू हम अपनी बात इतने बड़े इलेक्टरेट्स को पहुंचाते हैं. सो प्लीज हमारी वोटिंग की अपील, सी विजिल का ऐप, नो योर कैंडिडेट, यंग वोटर्स, महिला वोटर्स से अपील को भी आप आगे तक पहुंचाएं. इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you sir for those very detailed remarks. The floor is now open for questions. I would request to please peacefully raise your hands. Miker will come to you. We will take few questions in a single round. आपके पास please. Yeah. Please introduce yourself and ask your question. आवाज एक सेकेंड, आपकी आवाज माइक थोड़ा दूर रख लीजिए. माइक थोड़ा सा दूर कर लीजिए. थोड़ा दूर रख लीजिए. यस, बेटर. ठीक है, प्लीज इन मैडम के पास. मैडम, या प्लीज. माइक प्लीज दिस साइड. एक सेकेंड. Welcome. Yeah, please. We will come. No, he's coming to you. Okay. He's coming to you. Thank you. Please, that side, back. Miker, please. उनके पास जाइए. थोड़ा दूर रखिए माइक, दूर रखिए. माइक थोड़ा दूर रखिए आप. मुंह से दूर रखिए माइक. मुंह से थोड़ा नीचे कर लीजिए. जी, बेटर है. आप मैडम प्लीज. Sir, we'll take one more question. One more. Please.
We will we'll take last one more question, sir. Yeah, one more. No, we'll come in the second round. Please, please. We'll Yeah, come in yeah. the second. One more in this round. We will take another. Last question. Yes, please. Last question. Please, आप बैठ जाइए, मैं पूछ रहा हूँ. Yeah. Say again. I could not hear. Right. We will answer these questions let me first. Answer these questions. We'll come We will back. take more. We We'll will take answer one these more questions first. Please, we will come back to you. Please. What? एक दिन we will come back to you. We'll come back. We will come back to you. एक प्रश्न पहले था कि एक दिन की पोलिंग की डिमांड की गई थी और हाउ मेनी फेजेस विल बी देयर. तो इसका जवाब यह है कि अभी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं सभी राज्यों का. तो पहली बात तो ये निर्धारित नहीं है अभी, लेकिन जब भी निर्धारित होगा तो सबसे पहले हम प्रेस को ही बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे. यू विल कम टू नो ऑफ दिस व्हेन द अनाउंसमेंट टेक्स प्लेस इन दिल्ली. Nobody would ever come to know of this before that. So we have heard all the parties. We'll keep all their suggestions in mind while deciding, depending on the local situations. दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि चुनाव पीसफुल नहीं हो रहा है, तो कैसे पीसफुल होगा एंड व्हाट डू वी थिंक अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आफ्टर आवर इंटरेक्शन विद द डीसीज एंड एसपीज. सो 2 दिन के डिटेल डिस्कशन से ये बात सबको क्लियर हो चुकी है. हमें जो फीडबैक मिलता है और जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है कि डीएम्स, एसपीज, पुलिस ऑफिशियल्स, स्टेट मशीनरी which is primarily responsible for giving a free and fair election is fully sensitized now to ensure a free and fair elections. They have committed to us. They have committed कि वो ये स्थापित करेंगे कि वायलेंस ना हो, वो ये भी करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो. हमने उनको ये भी कहा है बहुत स्पष्ट तरीके से कि वो खुद तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने नीचे के अधिकारियों को भी इस चीज़ के लिए सजग करेंगे, उनसे भी कराएंगे. आई एम श्योर द इनिशियल वी हैव नो रीजन्स टू डिसबिलीव देम. दे आर ऑल कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स. वी आर श्योर दे विल डू इट. किसी वजह से नहीं कर पाएंगे तो फिर हम तो देखेंगे क्या करता है. बट डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है. जैसे एक प्रश्न उन्होंने भी पूछा कि हम बार बार कहते हैं, आते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ घटना घट जाती है. सही है, घटना घट जाती है. पहले हमारी अभी के रिव्यू से समझे कि घटनाएं उस हद तक नहीं घटेंगी. अगर घटेंगी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको सख्ती से निपटेगा. अगर वो सख्ती से नहीं निपटेगा तो हम उनसे सख्ती से निपटवाएंगे. दूसरा आपने पूछा कि सीएपीएफ यहां क्यों आया है. सीएपीएफ और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी कंट्री में सभी स्टेट्स में गई हैं. इट्स ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट वी सेंड द एडवांस पार्टीज टू मूव इन एडवांस. अगर पूरी कंट्री में जितनी गई हैं उसका 10% मात्र बंगाल में आए हैं, और वो हर जगह में जाना उनका काम है. पहले से एरिया को समझना उनका काम है. उनके साथ में स्टेट पुलिस आपने पूछी लगेगी कि नहीं लगेगी. मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की ही है और वो रहेगी. जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीएपीएफ कहां लगेंगी इसका निर्णय भी कौन लेगा. इसका निर्णय भी स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर जो कि राज्य सरकार के वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो, आरिफ साहब जो हमारे सीईओ हैं वो, और जो एक ऑब्जर्वर कमीशन का होगा यहाँ आएगा वो. 3 लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि अगर इतनी कंपनीज फोर्स आई है तो वो कहाँ जानी चाहिए, कहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है. इट इज़ देयर डिसीजन कंबाइंड. और इसी प्रकार से जब वो डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएंगी तो डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ जानी चाहिए इसका निर्णय भी डीएम, एसपी और जो हमारे ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे वो लेंगे मिलकर. पॉइंट इज दैट इट इज responsibility of all combined, and it is a practice which we are following across the country in all states in the similar fashion. And Bengal
will also be part of the same SOP as it is everywhere. Next. We will take one by one. Madam को दे दीजिए please. One by one. Yeah, madam, please. We will take questions from that side also. आपके पास आ रहे हैं. One question, madam, please take the mic. Take the mic. Take the mic. Mic. Take the mic. Okay. Take the mic. Yeah. One by one, please, one by one. Let her ask. Okay, sir. Take from that. We will take from that side also. Please, madam. Sir, Please introduce yourself. I am Shoibal from Telegraph, sir. एक सेकंड साहब, एक सेकंड. Sir, it is a related question, sir. Please take them. Sir, in the Please, last one question. One more question Sir, we'll in the take. last 3-4 elections, Please. there has been huge deployment of central forces in West Bengal. थोड़ा दूर रखिए थोड़ा माइक. नीचे कर लीजिए माइक. हाँ. Yeah, it's fine, sir. जी. Sir, better in the है. last 3-4 elections, there has been huge deployment of central forces in West Bengal. Despite that, there has been several complaints that people have not been able to give their votes. Sir, this is very pertinent because it relates that whether the deployment of central forces is useful or not. Correct. Thank you. Sir, Just wait. We will come back, sir. We'll come back. Myself, Shubhankar One more Ghosh. question. are you listening, sir? Myself, Please. Shubhankar Ghosh, representing Bartaman Patrika. Sir, am I audible? Sir, there are allegations that lot of fake voters and double entries are there in the voter list. Are you, what measures are you looking into forward? सर Okay. दिस इज चंद्रपुर भट्टाचार्य फ्रॉम आनंदबाजार पत्रिका. सर मेरा 2 प्रश्न है. एक है डीएससी और पीएससी का जो वोटर लिस्ट में जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में, और दूसरा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने सीएपीएफ का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट और यूज़ के बारे में सवाल करते आए हैं, और पिछले कई वोटों में ये मुद्दा उठाया जाता है कि प्रॉपर यूज़ नहीं होता. इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? We will take one more question from sir. Yes. Last question, sir. Last question, we will take one more. We'll come back. Sir, we will come back. Okay. We will answer these questions, sir. Sir. No. थैंक यू. Thank you. We'll answer these. आपने जो पहले एक क्वेश्चन आपका देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को वोट देने के बारे में, ये आपका बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि आपको उस दिन वोट देने की सुविधा मिलनी चाहिए.
इसको हम लोग जरूर देख के आपको एग्जिट क्या कर सकते हैं बताएंगे। व्हेन एवरीबडी ऑन एसेंशियल ड्यूटीज कैन गिव वोट, तो वो आपको कैसे करेंगे, पोस्टल बैलेट आपको कैसे हम उपलब्ध कराएंगे, इसके बारे में जरूर देखेंगे आपको, ये वी विल कम बैक ऑन दिस। फेक वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स की जो सूचना, जो कंप्लेंट्स यहां मिली हैं, आज के दिन में पूरे राज्य में, वेस्ट बंगाल के, जब वोटर लिस्ट का बनने का कार्य शुरू हुआ, सो आप सब इस बात को जानते हैं कि 5 जनवरी 2023 को रोल फाइनल हुआ और उसके बाद एक साल बाद 5 जनवरी 2024 को रोल फाइनल हुआ। इस बीच में कॉन्टिन्यूस अपडेशन होता है। तो 5/1/23 की सूची भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, उनको फ्री में उपलब्ध कराई गई। उसके बाद अक्टूबर 23 में when the special summary revision started, at that time also the draft rule has been provided to all the political parties, which means what happened between 5 January 23 to October 23 they can check. Then again for 2 months continuously, every party we have had in the districts large number of meetings with them. So every addition, every deletion is in their knowledge continuously for 2 months. All forms 6, 7, 8 are uploaded on the website. It is so transparent. At every stage it is published, it is put on the notice board, and it is also published on the social media. After that, on taking all claims and objections into mind and into consideration, और किसी का डिलीशन जब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी इंक्वायरी ना हो गई। ये इलेक्शन के वोटर लिस्ट का एक ऐसा कार्य है जो कि फील्ड वेरिफिकेशन के बाद होता है। सो द फाइनल रोल हैज बीन पब्लिश्ड इन January 24. There is whatever complaints came on deletions of fake voters have all been seen and responded to the political parties. आपने ये कहा था, इतने लोगों के बारे में कहा था, इतने सही है, इतने गलत है, ये आपको सूचना दी जा रही है। फिर भी अभी भी अगर किसी की तरफ से ऐसी सूचना आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये हमने कल इंस्ट्रक्शन सबको स्पेसिफिक दिए हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था अपने एड्रेस में, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कॉन्टिन्यूसली और एसपीज कॉन्टिन्यूसली कम से कम 2-3-4 बार ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मिलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित उनको थाने में बैठा लिया, इससे संबंधित उनको मिलने नहीं दे रहे हैं किसी से, इससे संबंधित सीपीएफ को गलत लगा दिया, इससे संबंधित वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इससे संबंधित ये अफसर काम नहीं कर रहा है, इससे संबंधित। दिस मीटिंग्स विल टेक प्लेस, दे विल प्रिपेयर, दे विल लिसन टू देम, दे विल रिस्पॉन्ड टू देम, सो दैट सूचना का जो आदान प्रदान है वहां पर डिसेंट्रलाइज तरीके से हो सके। और अगर उसमें ऐसी कोई शिकायत आती है कि उन्होंने नहीं सुना, तो हम अपने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को भी ये डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप भी जाके सुनने के लिए, काम उन्हें करने दीजिए बट सुनने के लिए आप उन मीटिंग्स में बैठें और देखें कि पॉलिटिकल पार्टी सबको बराबर या कैंडिडेट्स को बराबर कहने का मौका मिल रहा है और उनकी बात पर कमेंट्स लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उनको जवाब दिया जा रहा है। आपने ये कहा कि सीएपीएफ तो बाद में चली जाएगी, आप बेसिकली पोस्ट पोल वायलेंस के बारे में पूछना चाहते हैं और कोई गारंटी के बारे में पूछना चाहते हैं कि हम गारंटी देंगे कि नहीं देंगे। पूरे का पूरा चुनाव को कंडक्ट कराने में स्टेट पुलिस, स्टेट की एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो बाहर से सेंट्रल फोर्सेज आएंगी जो हर स्टेट में जाती हैं, उनका बहुत ही बराबर का रोल है, महत्वपूर्ण रोल है, विद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द पुलिस। तो जितने भी इंड्यूसमेंट्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके हैं, आपने मोटरसाइकिल पे किसी के यहाँ चक्कर लगाया, किसी को थाने में लाके बैठा लिया, किसी बिल्डिंग के चारों तरफ आप घूम गए, कहीं कैरम क्लब में आपने कुछ किया, कहीं मोटर बाइक साइकिल रैली निकाली, वॉट एवर इज प्रेवलेंट हियर, district magistrates and SPs have been repeatedly told, repeatedly, I am also repeating it number of times with full emphasis, that अगर वायलेंस
उनके एरिया में होगी, कोई सुतली बम फोड़ा, कोई डराया, कोई धमकाया, वोटिंग पे नहीं आने दिया, पोलिंग एजेंट को नहीं आने दिया, ये सारी बातें उनको बताई गई हैं. एंड वी एक्सपेक्ट दैट at this stage, at this moment, we will go by what they are saying, what they are committing to us, कि हम ऐसा नहीं होने देंगे. हम अपने नीचे के अफसर्स अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे, नहीं मानेंगे हमारी बात, तो हम उन पे एक्शन लेंगे. ये भी वो कह रहे हैं. किसी के पक्ष में नहीं है कि हिंसा हो, और हिंसा का कार्य का कहीं कोई स्थान नहीं है डेमोक्रेसी में. ये उनको बहुत स्पष्ट समझाया गया. ये भी कहा गया है कि ऐसे किंग पिन्स, ऐसे बड़े लोग जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं, उन पर नजर रखें, उन पर 107 की कार्रवाई करें, उन पर जो कार्रवाई कानूनी प्रिवेंटिव हो सकती है करें. ये बहुत स्पष्ट उनको समझाया गया, बताया गया, पूरा दिन लगाया गया इस बात पर. और हम इस बात के लिए पूरी तरीके से संकल्पित हैं, दृढ़ हैं, एश्योर्ड हैं कि वो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम उनसे कराने की क्षमता रखते हैं, कराएंगे. कोशिश है कि बहुत ही फ्री और फेयर तरीके से, हिंसा मुक्त, प्रलोभन मुक्त और एक उत्सव के माहौल में चुनाव हो. वैसे भी यहाँ लोग सब वोट देने जाते हैं, बहुत ही पॉलिटिकली लाइव जगह है, तो उसी माहौल में यहाँ उत्सव हो. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. That brings us to the end of this press conference. Honorable Commission has to catch a flight back to Delhi. I now invite the media to kindly join for the refreshments here. Thank you for attending this presser. Thank you so much.